also sustain themselves through these difficult times. Coven warriors are spread across different states of India and are steadily growing day by day. Till date, Coven has impacted almost 40,000 lives. I would request you all to definitely check out our website and see if you can also make an impact, maybe as a volunteer, as an individual, as an organization, or as an NGO. Please do log on to our website and let us together make a difference. We'll quickly play our Coven video. Do check it out. मुश्किल है आन पड़ी ये कैसी कठिन घड़ी, सहमी सहमी जिंदगी, बिखरी हुई बंदगी, मानवता है पुकार रही, दिखाएं हम दरिया दिली। I can, you can, we can, India can, I can, you can, we can, India can। हम सब मिल जाए तो, मिलकर हाथ बटाए तो, टल जाएगी ये घड़ी, झूमेगी फिर से खुशी। आशा टूटे नहीं, हौसला रूठे नहीं, साथ ये छूटे नहीं, मंजिल दूर नहीं, मानवता है पुकार रही, दिखाएं हम दरिया दिली। I can, you can, we can, India can, I can, you can, we can, India can। मुश्किल है आन पड़ी ये कैसी कठिन घड़ी, सहमी सहमी जिंदगी, बिखरी हुई बंदगी, मानवता है पुकार रही, दिखाएं हम। Thank you for tuning into our song, everyone. Keep in mind, I can, you can, and we can together make the difference during these times. I would like to welcome our speaker today, who has just joined us in, Dr. Vikrant Singh Tomar. Thank you so much for taking the time out and joining us today. I will just take a couple of minutes to briefly introduce you, sir. Dr. Vikrant Singh Tomar is a young acknowledged trainer, academician, scholar, writer, and management consultant. He's an internationally certified NLP practitioner. He has worked as a national training resource of INC ICFI Hyderabad. He's a qualified trainee member and a National Merit Award holder in electronic enabled training of the prestigious Indian Society of Training and Development. As a freelance associate trainer, he has served cabinet ministers of state, MLAs, Indian Coast Guard, Niti Aayog, CBI, and various other organizations of repute. He has addressed several seminars and renowned conferences
such as Bank of America and Asian Leadership Network in USA, as well as impact of Indian philosophy on modern management. And he has also authored the book called Rule of the World as Krishna Did, Rule the World as Krishna Did. And his new book is currently under publication called Science of Emotions. He has also worked as a freelancer for leading national dailies, Times of India, and the Free Press. He has an MBA in marketing and HR, as well as a doctorate in business management. He has crafted a multidisciplinary vision by doing formal education in journalism, public administration, philosophy, and yoga, with rank in university in all the above. His varied educational background has made him interdisciplinary and versatile in training and consultancy. Thank you so much, Dr. Tomar, for joining us in. So we have received a lot of questions on our subject matter today, which is from distress to de-stress in these challenging times. I would like to begin with the questions that we have received, and then towards the end, we will also look at certain live questions that are coming in, and hopefully we will have an extremely fruitful discussion for our audience members today. Yes, please. So to begin with, one of the most common questions that we received is how to maintain a healthy state of mind and a healthy body during these times. How to stop overthinking in this free time. Could you please share some tools and tips for the same? It is a very good question, Mandira, and hello everybody. आपने बड़ा ही यूजफुल क्वेश्चन पूछा है कि इस डिफिकल्ट टाइम में हाउ टू मेंटेन आवर मेंटल बैलेंस. सो दिमाग को जिस शब्द से संस्कृत या इंडियन स्क्रिप्चर्स में जाना जाता है वो है धी. धी मीन्स माइंड. सो ये पूरी दुनिया जिसको भी हम देखते हैं, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं. One is called adhija. Adhija means born out of mind. And some problems are called anadhija. Anadhija means which are not born out of mind. So आप हम ये आसपास जितने लोग देख रहे हैं, हमारे पास दो ही समस्याएं हैं. कुछ समस्या शरीर की है, अनाधिजा, और कुछ समस्याएं मन से पैदा होती हैं, जिसको हम आधिजा कहते हैं, माइंड बॉर्न. और इसी समस्याओं को व्याधि कहते हैं. व्याधि मीन्स अ प्रॉब्लम. सो देयर आर सम प्रॉब्लम्स व्हिच आर बॉर्न आउट ऑफ माइंड. और जैसा लोग कह रहे हैं कि दिमाग इतना सोच रहा है, और ये बिल्कुल स्वाभाविक भी है. दिमाग कहते हैं एक बंदर की तरह है. ऐसा बंदर तो वैसे ही बड़ा उछलता है. ऐसा बंदर जिसने सुरा का पान कर लिया हो, जिसने शराब पी ली हो, और जिसको बिच्छू ने डंक मार दिया हो, सोचिए कितना उछलेगा वो. और जिसमें किसी प्रेत की आत्मा आ गई हो, ऐसा बंदर होता है हमारा मन. तो जरा सी चीजों में उछलने लगता है. तो अभी तो इतना बड़ा दुनिया के सामने समस्या है, तो उसका उछलना बड़ा स्वाभाविक है. सो ये जो समस्या है इसको हम कहेंगे माइंड बॉर्न प्रॉब्लम्स विच आर माइंड इज क्रिएटिंग फॉर अस. सो हाउ टू डील विथ इट. मानव शब्द का अर्थ ही वो है जो मनन कर सके, उसी को मानव कहते हैं. वन हु कैन कंट्रोल एंड कंटेम्पलेट अपॉन हिज ओन थॉट्स, जो अपने विचारों को नियंत्रित कर सके. बिकॉज द साइकिल ऑफ लाइफ इज आवर थॉट्स बिकम्स आवर फीलिंग्स बिकम्स आवर वर्ड्स. Our words becomes our actions. Our actions repetitively becomes our habits. Our habits becomes our character. And our character becomes our destiny. So every thought that I am getting today is in a way crafting my destiny. That's why I have to be very cautious in understanding what thoughts to entertain and what thoughts not to entertain. So बिल्कुल हमें कोविड से ही ये सीखना भी है कि कैसे थॉट्स को एंटरटेन करें. देखिए, हमने सारे डिस्ट्रिक्ट्स की बॉर्डर्स को सील कर दिया है. हमने सारे राज्यों की बॉर्डर्स को सील कर दिया है. हमने घरों की भी बॉर्डर्स को सील कर दिया है.
और इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी सील हैं। एक व्यक्ति को भी इधर से उधर जाने से पहले बहुत बार बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, तब वो मूव हो सकता है। बस इसी तरह से एक इमिग्रेशन चेक अब हमें हमारे दिमाग पे भी लगाना है। जैसे ही कोई थॉट दिमाग पे आएगा तो उस थॉट्स को हमें दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। थॉट्स, कोई भी विचार आया, फर्स्ट थिंग आप खुद से पूछिए, कैन आई कंट्रोल इट। जो भी परिस्थिति है, सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया, आस्क योरसेल्फ कैन आई कंट्रोल इट। पेपर में हमने कुछ खबर पढ़ी, आस्क योरसेल्फ कैन आई कंट्रोल इट। तो देयर विल बी टू थॉट्स, समथिंग विच यू कैन कंट्रोल एंड समथिंग विच यू कैन नॉट कंट्रोल। सो डिवाइड योर थॉट्स इन टू। तो अब जो आप जिन थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते और जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो जिन थॉट्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं उनके लिए क्या करना है? इट मींस यू कैन चेंज इट, यू कैन कंट्रोल इट। सो द आंसर इज चेंज द चेंजेबल। जो बदला जा सकता है फिर उसे पूरी ताकत करके बदल दीजिए। जैसे क्या बदला जा सकता है और क्या नहीं बदला जा सकता, इस पे भी अपन विचार करेंगे। फिर अगर मान लीजिए कोई थॉट ऐसा है जिसको बदला नहीं जा सकता, कोई ऐसी चीज हो गई, पेपर में पढ़ा कि इतने लोग अब नहीं रहे, इतनी डेथ्स हो गई, हमारा एक डिस्टेंट रिलेटिव को भी ये हो गया, आप खुद से पूछिए कैन आई कंट्रोल दिस? आंसर मिलेगा नो, आई कैन नॉट कंट्रोल दिस। तो जिस भी प्रश्न का उत्तर मिले आई कैन नॉट कंट्रोल इट, तो फिर सीना चौड़ा कीजिए और उसको स्वीकार कीजिए। एक्सेप्ट द थिंग्स विच आर नॉट कंट्रोलेबल, चेंज द थिंग्स विच आर चेंजेबल, एक्सेप्ट द थिंग्स विच आर नॉट चेंजेबल। जो नहीं बदला जा सकता उसको स्वीकार कीजिए। तो थोड़ा हम समझ लें, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। हम कुछ क्वेश्चन सबसे पूछेंगे जो देख रहे हैं, आप सोच के बताइए। जैसे पहला क्वेश्चन, हवाई जहाज और ट्रेन चलना बंद हो गई, कैन आई चेंज इट और कैन आई कंट्रोल इट? आंसर क्या है? नो, आई कैन नॉट। इट मींस ये कौन सा थॉट है जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इसके लिए मुझे क्या करना है? एक्सेप्टेंस। ठीक, सोचना नहीं है, स्वीकार कीजिए चीजें ऐसी ही हैं, तथाता, थिंग्स आर सच। जैसे आप कहीं नौकरी करते हैं, अभी आप ऑनलाइन नौकरी कर रहे हैं, आपकी बॉस से पट नहीं रही है, तो पूछिए कैन आई कंट्रोल माय बॉस? आंसर क्या आएगा? नो। कैन आई चेंज माय बॉस? आंसर आएगा नो। इट मींस थिंग्स विच आई कैन नॉट चेंज, उसमें मैं सोच के अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आई विल एक्सेप्ट थिंग्स एज सच। सो जैसे मेरी पिछली गलतियां, जो मुझसे पहले गलतियां हो गई हैं, क्या मैं उन्हें बदल सकता हूं? अब मैं उन्हें नहीं बदल सकता। तो जो भी चीज जिंदगी में हमारे कंट्रोल के बाहर है उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो रूल हो गया, चेंज द चेंजेबल, एक्सेप्ट द थिंग्स विच आर नॉट चेंजेबल। बट सर मैं सहन ही नहीं कर सकता कोई मुझसे ऐसे बात करे। सर रोज मैं पेपर में पढ़ता हूं, मेरा दिल बहुत दुखता है ये देख के क्या हो रहा है। सर मुझे लगता है हम हमारे बच्चों को कैसी दुनिया देके जा रहे हैं। सर मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है सर। तो आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट नाउ। यस, आई कैन नॉट चेंज द एनवायरमेंट, मैं परिस्थिति को नहीं बदल सकता, ये बीमारी आ गई है, पर सर मैं इसको स्वीकार भी नहीं कर सकता सर, बड़ा दर्द होता है सर। तो फिर आखिरी सॉल्यूशन क्या है? रिमूव द थिंग्स, रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम व्हाटएवर इज नॉट एक्सेप्टेबल। जो भी बदला नहीं जा सकता उससे खुद को रिमूव कर लीजिए। सो फॉर्मूला है CAR, कार। चेंज द चेंजेबल, एक्सेप्ट द थिंग्स विच आर नॉट चेंजेबल एंड रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम व्हाटएवर इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब रिमूव कैसे किया जाता है? पहली बात, पेपर पढ़ना बंद कर दीजिए भाई। एक विद्वान ने बताया, उससे पूछा गया आप इतने महान कैसे बने? तो उसने बोला साहब मैं रोज सुबह उठ के 2 किताबें पढ़ता हूं, एक शैतान की किताब, एक भगवान की किताब। शैतान की किताब क्या है? ये जो डेली न्यूज़पेपर है, पूरी दुनिया भर में जितना तनाव है रोज मेरे सामने अभी आ रहा है। और दूसरा भगवान की किताब, सम गुड मैसेजेस, बाइबल, कुरान, गीता, उपनिषद। सो आप अपने एक्सपोजर को बदलिए। रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम व्हाटएवर इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपसे सहन नहीं हो रहा,
चेंज योर एक्सपोजर। टीवी पे आप क्या देख रहे हैं उसका क्वांटिटी क्वालिटी चेक कीजिए। आप क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह के लोगों से आप बात कर रहे हैं, उस पर आप काम करना चालू कीजिए। सो आई हैव अ 5 पॉइंटेड टिप्स फॉर दोज पीपल। अगर वो रिमूव नहीं कर पा रहे हैं तो तरीका है पहला, बुद्धम शरणम गच्छामि। किसी ऐसे व्यक्ति से फोन पे बात कीजिए, ऑनलाइन टच में रहिए जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं और जो बहुत पॉजिटिव और अच्छा व्यक्ति हो। बुद्धम, एक गुरु, एक व्यक्ति जो आपसे बेहतर जानता है, वो हमेशा आपको बेहतर फील कराएगा। दूसरा, धम्मम शरणम गच्छामि, रीड सम गुड बुक्स। दिस इज द टाइम, आपको समय मिला है, अच्छी किताबें पढ़िए, रामायण देखिए भले टीवी पे। और तीसरा, संघम शरणम गच्छामि, ज्वाइन सच ऑनलाइन ग्रुप्स विच टॉक पॉजिटिव। सत्संग जिसको कहते हैं, संघम, ऐसे संघ में जुड़िए, क्योंकि पीपल हु क्रिटिसाइज दे डोंट कंट्रीब्यूट, एंड पीपल हु कंट्रीब्यूट उनके पास समय नहीं होता क्रिटिसाइज करने का। तो ऐसे लोग जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनसे जुड़िए। और आखिरी बात, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनिए। थोड़ा मेडिटेशन करना चालू कीजिए। आपको मेडिटेशन क्या करना चाहिए, लेट मी टेल यू। जैसे आप बैठे बिल्कुल सीधे, गहरी सांस अंदर लीजिए एंड इनहेल द पॉजिटिव एनर्जी। जैसे सूरज उग रहा है, imagine that sunrise and inhale the positive energy and exhale all the stress and negative thoughts that you have. Again inhale positive, exhale or negative. This is stage 1. Stage 2 में क्या कीजिए, inhale positive energy and exhale positive energy only. And when you'll keep on doing it, remain in a कल्पना, मेडिटेशन में रहिए और एक विजुलाइज कीजिए दैट ब्यूटीफुल एनर्जी इज कमिंग इनसाइड यू। तो जस्ट टू समराइज, हमने ये कहा कि जितने भी थॉट आपके पास आ रहे हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, कैन आई कंट्रोल इट और कैन आई नॉट कंट्रोल इट, और उसके आधार पे CAR डिसाइड कीजिए। इफ यू कैन चेंज इट, चेंज द चेंजेबल। इफ यू कैन नॉट चेंज इट, accept the things which are not changeable. If you cannot accept it, remove yourself from whatever is not acceptable. How to remove? So there are 4 methods. 1, share with somebody who is Buddham for you, your guru, your master, anybody who is more experienced. Second, Dhammam Sharanam Gacchami, read a good book, it will deviate you from there. Third is Sangham Sharanam, ऐसे लोगों की ऑनलाइन कंपनी में रहिए। और आखिरी is meditation कीजिए। Hope it answers. Thank you so much. You have not just conceptually taken us through the process of our thoughts, but also given us these valuable tools like the tips and tricks of managing our minds in this time. Moving on to the next question. How do I effectively utilize this time at home? I live alone. Beautiful question. It is rarest of the rare opportunity that आपको अकेले समय मिला है। अलोन होना और लोनली होने में आसमान जमीन का अंतर है। लोनली इज समथिंग विच इज इन्फ्लिक्टेड अपॉन यू, बीइंग अलोन इज अ चॉइस। सो इफ यू हैव यूज्ड द वर्ड अलोन, इट मीन्स यू हैव एक्सर्टेड अ चॉइस। दैट्स ग्रेट। इट्स नॉट बीइंग डल और डिप्रेस्ड। सो क्या करूं मैं अकेले हूं? बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। पहला काम कीजिए, महाभारत के 5 पांडवों से कुछ सीख लीजिए। ठीक, कौन कौन से 5 पांडव थे महाभारत के, याद कीजिए। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर क्या सिखाता है? पायस ऑब्जेक्टिव्स, बड़े लक्ष्य बनाना है जिंदगी में। तो तुरंत कागज पेन उठाइए और खटाखट अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखिए। अकेले बैठे हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, बैठ के लिखिए कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ क्या है, मैं क्या करने के लिए आया हूं यहां। क्योंकि दोस्त, जिंदगी में 2 ही बार इंसान पैदा होता है। एक बार मां के गर्भ से, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। दूसरी बार अपने अनुभव और ज्ञान की गर्भ से। तो मां के गर्भ से तो व्यक्ति पैदा होता है और अनुभव के गर्भ से व्यक्तित्व पैदा होता है। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड, वी आर बोर्न ट्वाइस, द्विज। तो व्हेन यू राइट योर ऑब्जेक्टिव्स, तो कैसे लिखना है आपको, ये भी सुनिए। कल्पना कीजिए अभी आपकी उम्र हो गई है 100 साल, भगवान आपको लंबी उम्र दे। आप कल्पना कीजिए अभी आपकी उम्र है 100 साल और आप 100 साल का केक काट रहे हैं। अब ये 100 साल का केक काटते समय आपको इन 5 डायमेंशन पे सोचना है।
physically, economically, spiritually, socially and personally. इन पांचों डायमेंशन में अगर आप अपने को सफल कहना चाहेंगे एट द एज 100 ईयर्स, तो क्या क्या होना चाहिए आपके पास? शायद आप ये लिखना चाहेंगे कि फिजिकली मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, बिना लाठी के चल सकता हूं और 2 फ्लोर सीढ़ियां चढ़ के जा सकता हूं, ये शायद आप लिखना चाहेंगे। इकोनॉमिकली आप लिखना चाहेंगे कि एक पैसा मुझ पे उधार नहीं है, मैं सेल्फ रिलायंट हूं। सोशली आप लिखना चाहेंगे कि शायद मेरे एनजीओ चल रहे हैं, मैं समाज की सेवा कर रहा हूं। पर्सनली आप लिखना चाहेंगे आई एम ए प्राउड ग्रैंडफादर, आई एम ए प्राउड फादर एंड आई एम ए प्राउड हस्बैंड, आई एम ए प्राउड सन, जो भी आप लिखना चाहें। पर इन शब्दों को जब आप लिखें, अच्छा प्रोफेशनली आप लिखना चाहेंगे कि मैंने इतना सारा बिजनेस जमाया, बिजनेस का मेरा अभी टर्नओवर इतना हो रहा है, अब मैं एक्स चेयरमैन हो गया हूं, या जो भी आप लिखना चाहें वो आपकी इच्छा है। पर याद रखिए ऑब्जेक्टिव लिखने समय डोंट बी जेनरिक, स्पेसिफिक रहिए। जैसे आई वॉज अ गुड सन, ये रॉन्ग है। आई वॉज अ सन हु वॉज ऑलवेज देयर फॉर द पेरेंट्स, ये स्पेसिफिक है, गुड की कोई परिभाषा नहीं होती। तो ऑब्जेक्टिव लिखिए, स्पेसिफिक लिखिए। इज दैट क्लियर? और दूसरा, बड़ा बनाइए ऑब्जेक्टिव। हम लोग बचपन से टॉम एंड जेरी देख रहे हैं, आज तक टॉम जेरी को पकड़ क्यों नहीं पाया? सोचा है? हम सोच रहे थे, वो पता है पकड़ क्यों नहीं पाया? वो इसीलिए नहीं पकड़ पाया क्योंकि माना टॉम बड़ा है और जेरी छोटी सी है, छोटा सा है। माना टॉम बड़ा है, जेरी छोटा है, पर दोनों में एक अंतर है। टॉम जो है वो एक वक्त के खाने के लिए दौड़ रहा है और जेरी जान बचाने के लिए दौड़ रहा है। तो जब भी आप देखेंगे कि टॉम का जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत छोटा है, एक वक्त का खाना है, पर जेरी का ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है। माना टॉम साइज में बड़ा है जेरी से, पर जेरी के ऑब्जेक्टिव का साइज टॉम से बहुत बड़ा है। सो पर्पस प्रीसीड्स परफॉर्मेंस। हमेशा बड़ा पर्पस बनाइए जीवन में। तो जो भी लक्ष्य लिखेंगे उसे बड़ा बनाइए। गली क्रिकेट में जीतने से बहुत अच्छा है जाके कॉलेज क्रिकेट में हारिए। कॉलेज क्रिकेट में जीतने से बेहतर है यूनिवर्सिटी क्रिकेट में हारिए। यूनिवर्सिटी क्रिकेट में जीतने से बेहतर है जाइए और रणजी ट्रॉफी में हारिए। रणजी ट्रॉफी में जीतने से बेहतर है इंटरनेशनल क्रिकेट में हारिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में जीतने से बेहतर है वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में हारिए। और वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जीतने से बेहतर है जाके वर्ल्ड कप के फाइनल में हारिए। अपनी जीत का स्तर नहीं बढ़ा सकते तो हार का स्तर तो बढ़ाएं यारों। जो करिए बड़ा कीजिए। तो पहला काम क्या कीजिए? बड़ा उद्देश्य लिखिए। अब क्या ऑब्जेक्टिव लिख लेने से जीवन तर जाता है क्या? बहुत सारे लोग योजनाएं बनाते हैं। हमारे एक मित्र हैं, कह रहे हैं मैं अमेरिका जाने का सोच रहा हूं यार, कितना खर्चा आता है? पिछले 2 साल से हमसे यही कह रहे हैं। तो इस बार हमने कहा कोई खर्चा नहीं आता, सोचने का क्या खर्चा है, आप चांद पे जाने का सोचिए। खर्चा कब आएगा? जब आप करेंगे उसके लिए। तो दूसरा काम आपको क्या करना है? सहदेव को वरदान था कि वो भविष्य देख सकता था। सहदेव मीन्स प्लानिंग एंड प्रोजेक्शन। अब कागज उठाइए और उन सब 5 पैरामीटर्स के आगे लिखिए डेडलाइंस, कब तक, मेजरेबल, कब तक करेंगे आप उसे। सो मेक इट मेजरेबल। अब चलिए, आपने एक ऑब्जेक्टिव बना लिया और आपके पास एक प्लान है, पर क्या इन दोनों से काम हो जाता है? तीसरी थिंग विच इज मस्ट और बहुत सारे लोगों में कमी होती है, पावर टू एग्जीक्यूट। भीम पवन पुत्र है, पावर टू एग्जीक्यूट। कन्वर्टिंग पावर पॉइंट्स इनटू प्रैक्टिस। भाषण देना बहुत सरल होता है, फील्ड में जब धरातल पे उतारते हैं तो मजे की बात होती है। जब आप मोबाइल में अलार्म लगाएंगे सुबह 4 बजे का, तो 4 बजे जब अलार्म बजेगा तो उस मोबाइल में एक बटन होता है जिसको बोलते हैं मक्कारी का बटन। उसको इंग्लिश में कहा जाता है स्नूज। तो जब भी आप उस बटन को दबाते हैं, आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं? आप अपनी पावर टू एग्जीक्यूट को खत्म कर रहे हैं एंड अपने साथ किए गए प्रोमिसेस को नहीं निभा रहे हैं। और जब भी आप अपने साथ किए गए प्रोमिसेस को नहीं निभाते, खुद को डिफॉल्ट करते हैं, आप अपनी जिंदगी की पेंटिंग में एक स्क्रैच खींचते हैं। और जब भी आप अपने साथ किए गए प्रोमिसेस को निभाते हैं, आप जिंदगी रूपी पेंटिंग पे एक सुंदर जेंटल स्ट्रोक लगाते हैं। तो जिंदगी की पेंटिंग स्क्रैचेस से भरी होगी या जेंटल स्ट्रोक से भरी होगी भाई, ये आपकी चॉइस है। पावर टू एग्जीक्यूट करिए। फिर उसे एग्जीक्यूट में अब अगले कॉलम में क्या लिखना है? पावर टू एग्जीक्यूट में एक्शनेबल पॉइंट्स।
फिलॉसफी नहीं, करना क्या है, मेजरेबल, एक्शनेबल पॉइंट्स। ये 3 काम हो गए। अब इसके बाद एक काम और बचा है, अर्जुना, फोकस, एकाग्रता। क्योंकि बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब करती हैं। जब आप कुछ करना चाहते हैं, लड़के सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो परेशान हो जाते हैं क्योंकि पेशेंस चेक होने लगता है उनका साथी बैंक में नौकरी करने लगता है, पैसा कमाने लगता है, ये भी तैयारी में ही लगे, तो आधे छोड़ देते हैं क्योंकि उनका मन भटकने लगता है। स्टीव जॉब हमेशा कहते थे, आई हैव टोल्ड नो टू मैनी गुड आइडियाज सो दैट आई कैन फोकस ऑन वन ग्रेट आइडिया। जब एप्पल बनी थी तो सब लोगों ने कहा था, जब इतनी बड़ी कंपनी बनी, कि साहब अब आप ऐसा करें, एप्पल के एसी भी चालू कर दीजिए, एप्पल की वॉशिंग मशीन भी लगाइए, एप्पल की फ्रीज भी बनाइए, देखिए सैमसंग सब बना रहा है। पर स्टीव जॉब वाज एकाग्र, इसीलिए आज एप्पल सैमसंग से बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक, और लास्ट, इन सब के पास एक भाई बचा है, वो है नकुल। नकुल मींस पैशन। यार जो लक्ष्य बनाओ वो आंखों से टपकना चाहिए, बोलने का नहीं होता लक्ष्य। अगर सच में आप उसे करना चाहते हो तो इसके केवल 2 परिभाषा है। सोते समय वही चीज आपका आखिरी विचार होना चाहिए और उठते ही पहला थॉट वो होना चाहिए। अगर ये दोनों बातें हो रही हैं तो पक्की बात है आप अपने लक्ष्य को जी रहे हो। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे, एक लक्ष्य बनाओ, उसी को सांसों में लो, उसी को खाओ, उसी को सपनों में देखो, उसी को जियो, उसको अपनी रगों में दौड़ाओ, फिर कैसे नहीं बनता। तो अभी अकेले हो, ये 5 काम कर लो। पहला, पायस ऑब्जेक्टिव, युधिष्ठिर। दूसरा, प्लान एंड प्रोजेक्शन, सहदेव। तीसरा, पावर टू एग्जीक्यूट, भीम। चौथा, प्रिसीजन, अर्जुना। और 5वां, नकुल, पैशन। हैव आंसर्ड इट? Yes, thank you so much. This has actually left me incredibly inspired as well. Thank you. Now we have a lot of questions on interpersonal relationships that have come in. One of the questions is, how do I ensure my child spends this time most effectively? What are some ideas you could share on parents spending time with their children? Excellent. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे घर के सीसीटीवी कैमरा है, वो कतई नहीं करते जो आप उन्हें करने को कहते हैं, वो करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं। और आपके जीवन में आज तक ऐसा समय कभी नहीं आया होगा जब वो बच्चा आपको 24 घंटे देख रहा है। तो समझ लीजिए आप सीसीटीवी कैमरे के सर्वेलेंस में हैं। आप उसे कुछ भी पढ़ा दीजिए, जब तक उसको आपके व्यवहार में नहीं दिखेगा तब तक वो कुछ एग्जीक्यूट नहीं करने वाला। हमारे एक परिचित थे, उनकी बेटी अंगूठा मुंह में लेती थी, तो वो कहते थे बेटा ऐसा नहीं करते। छोटी सी बच्ची थी, 5-1 साल की, 5-6 साल की, तो बच्ची फिर भी लेती ही थी। एक दिन ये दोनों बैठ के कार्टून मूवी देख रहे थे, पिता और पुत्री, रात को 12 बजे का समय, सच्ची घटना बता रहे हैं। तो बेटी को पिताजी ने बोल के दिखाया कि देखो उस कार्टून मूवी में जो कैरेक्टर है, देखो उसने अपनी गंदी आदतें कितनी आसानी से छोड़ दी। हालांकि मुश्किल होती है पर गंदी आदतें छोड़नी चाहिए। तो छोटी सी बेटी टीवी देखते देखते बोली, हाँ पापा सच में गंदी आदतें छोड़ना मुश्किल होता है, आपसे भी कहाँ सिगरेट छूट रही है। एंड पिताजी की आंखें एकदम से चौड़ी होकर उन्होंने देखा है क्या कह रही है। एंड देन फादर डिसाइडेड टू लीव स्मोकिंग, at least not demonstrate smoking in front of her, and for couple of months he started doing the same. एक दिन उस छोटी सी बच्ची ने पापा के पास आके बोला, पापा मुझे अच्छा नहीं लगता मैं अंगूठा मुंह में लेती हूँ, I really want to leave this habit, देखो आपने भी तो छोड़ दिया ना, so can you help me in that? मैं दिन भर तो नहीं लूंगी पर अगर सोने के बाद मुंह में अंगूठा चला गया तो प्लीज आप उसको निकाल देना। and this is how it affects. तो अगर आप 24 घंटे घर में हैं तो सजग हो जाइए, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। दूसरी बात, जब भी बच्चा आपके से बात करने आए, यही समय है आप यादें बनाइए, मेमोरीज क्रिएट कीजिए। आपको वैसे ही कहां समय मिलता है नौकरी में, अभी तो मौका मिला है और अब जीवन में ऐसा मौका फिर कभी मिलने वाला भी नहीं है। ये बाय चांस ऐसा मौका आपको मिल गया है, यादें बनाइए। यादें बनती कैसे है? मिट्टी है, अगर मिट्टी है आपके घर में तो मिट्टी, नहीं तो पेपर क्राफ्ट, मिलके क्राफ्ट बनाइए, उसको पेंट कीजिए। आधी पेंटिंग आप कीजिए, आधी पेंटिंग बेटी से कराइए।
और उसको ड्राइंग रूम में सजाइए, बेटी जिंदगी भर याद रखेगी पापा के साथ मैंने बताया था। और याद रखिए दोस्तों, लोग अपने बचपन की यादें इमोशंस में स्टोर करते हैं। क्रिएट एन इमोशनल मोमेंट फॉर हर बाय डिफरेंट थिंग्स। आप उसको स्टोरी सुनाइए, उसकी सुनिए। देखिए क्या होता है जब बच्चा आता है और आपसे बात करता है, पापा ऐसा पापा वैसा, एंड पापा मम्मी या पापा दादी आपस में बातचीत में व्यस्त हैं और बच्चे को देख नहीं रहे हैं, तो बच्चा जब 4-4 बार पापा को बोलता है और पापा नहीं सुनते, यहीं से बच्चा हकलाना शुरू करता है। दोस्तों, हकलाने की परिभाषा क्या होती है? इट मीन्स व्हेन आई लूज कंट्रोल इन माय स्पीच। हाउ डिड आई लूज कंट्रोल इन माय स्पीच? बिकॉज इनडायरेक्टली मेरे पिताजी ने ही मुझे सिखाया है कि बेटा तुम्हारी बात इतनी वर्थलेस है कि तुम्हारे पिताजी को भी अपनी बात समझाने के लिए तुम्हें 5 बार बोलना पड़ेगा। ही विल लूज कमांड ऑन हिमसेल्फ। तो क्या करें? जैसे ही बच्चा आपके पास आया और वो कहता है कि पापा ऐसा वैसा, आप अपनी बातें रोक के या तो उसकी बात सुन लीजिए। नहीं, आप दोनों की बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो फिर क्या कीजिए, आप उसे बोलिए बेटा अभी आप 5 मिनट रुकिए, हमारी बात खत्म होगी तब हम आपकी बात सुनेंगे। उसे बोलते मत रहने दीजिए। डोंट कीप हिम अनअटेंडेड। ये करना शुरू कीजिए। इसके अतिरिक्त उसको बोलिए ड्रीम जर्नल बनाए, सपने में वो क्या देखता है और सब सुबह उठ के उस सपने को ड्रॉ करो। उसके सारे सपने की अगर आपने एक बुकलेट बना दी, एक तो जिंदगी भर का सोवेनियर है। जब आप सपने देखेंगे बार बार, तो आपको कुछ उसमें पैटर्न्स दिखेंगे। क्या हर सपने में वो कहीं जाके छुप रहा है? तो आपको समझ में आएगा इसे किसी चीज का डर है। क्या रिफ्लेक्शंस आपको सपने में दिख रहे हैं? एक दिन बच्चे को बोलिए आज तुम पापा का रोल निभाओ और दिन भर पापा बनो और आप बच्चे बनिए, और देखिए वो पापा का रोल निभाता कैसा है। क्या पापा का रोल निभाते समय वो गुस्से के चेहरे भाव बनाता है मुंह पे? इसका मतलब यही इंप्रेशन आपने उसके मन पे छोड़ा है। यू कैन ऑल्सो गेट रिफ्लेक्शन बैक फ्रॉम हिम। सो एंड सिट बैक एंड टॉक टू हिम। इतनी सारी चीजें आप कर सकते हैं। हैव आई आंसर्ड इट? Yes, I think this would be extremely valuable to a lot of parents. The next question says, my spouse and I were recently married. We had to cancel our honeymoon due to the outbreak of COVID-19. And we did not get to spend any alone time to connect with each other. I live in a joint family. What can I do to build this connection with my spouse? Excellent question. मंदिरा, इतने वैरायटी ऑफ प्रश्न लोग पूछ रहे हैं। पूरा जीवन को समग्रता से लोग अलग अलग बैकग्राउंड के लोग बात कर रहे हैं। बड़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। यार देखिए, हनी मार्केट में उपलब्ध है और मून रोज शाम को रात को उपलब्ध है। ठीक, तो अगर आप नहीं एक दूसरे के साथ समय बिता पा रहे हैं तो हम आपको 7 स्टेप्स बता रहे हैं। आई एम टेलिंग यू 7 एग्जीक्यूशनेबल लैंग्वेजेस ऑफ लव। जरूरी नहीं है कि एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग बोल के ही डेवलप हो। लेट मी टेल यू, देयर आर 7 लैंग्वेजेस ऑफ लव। फर्स्ट लैंग्वेज, स्पीक गुड। Everybody in this world likes to be appreciated. Invariably, वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, प्यून हो, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके काम को अप्रिशिएट किया जाए। ये करना शुरू कीजिए। अफर्मेशंस दीजिए। आज खाना बहुत अच्छा बना है। You are looking very good today. Thank you very much. For every single, हर अपॉर्चुनिटी लीजिए to give a positive stroke. इससे रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। पहला, स्पीक गुड। दूसरा, शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। बिना कुछ बोले झाड़ू लगा दीजिए, बिना कुछ बोले पोछा लगा दीजिए। आपकी तोंद कम होगी, आपका मध्य प्रदेश कंट्रोल हो जाएगा अगर पोछा लगा दिया तो, और साथ में घनिष्ठता बढ़ेगी। क्योंकि होठों से बोलना आई लव यू बड़ा सरल होता है, पर जब आप जाके एक्शन करते हैं कुछ, that I bear your responsibility so that you can get some time to relax, it speaks louder. सर्व, काम में मदद बढ़ाइए। ठीक, हमने झाड़ू पोछा इसलिए बोल दिया अज्यूमिंग कि आपको खाना बनाना नहीं आता। अगर आता है तो बना के खिला दीजिए। चलिए, तीसरा, लव एंड ट्रस्ट। टच, जो टच है ये सबसे प्राचीनतम भाषा है। ये लैंग्विस्टिक भाषा से भी पुरानी है। एक बच्चा पैदा होते ही रोता है, मां की छाती पे रख दीजिए चुप हो जाता है।
वो जो टच की भाषा है उसका उपयोग कीजिए, बच्चों को गले लगाइए। रिसर्च बताती है अगर आप बच्चों को, आप चाहते हो जल्दी भाषा सीखे, उसको 8 बार गले लगाइए रोज। आप चाहते हैं कि उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो, 15 बार गले लगाइए रोज। और आप चाहते हैं उसका सर्वांगीण विकास हो तो 20 बार रोज गले लगाइए। और ये नियम सब पे लागू होता है। ठीक सर, ज्वाइंट फैमिली है, गले कैसे लगा लें? हाथ हाथ में रख के बात कर सकते हैं। हाथ हाथ में रखना बड़ी महत्वपूर्ण सिंबल है। ये कितनी बातें कहता है जब आप किसी का हाथ हाथ में लेते हैं। पहला, आई एम देयर फॉर यू। दूसरा, वी आर अ टीम। तीसरा, डोंट वरी। चौथा, रिलैक्स। पांचवा, दिस टू विल पास। छठा, लेट्स वॉक टुगेदर। सेवंथ, आई केयर फॉर यू। कितना कुछ आप बिना बोले बोल देंगे। अगला, चौथा, बी देयर। कुछ भी हो जाए, एवरी इंपॉर्टेंट इमोशनल इंसिडेंट पे आपको होना चाहिए। ठीक, तो आप तो अभी हैं ही, तो बी देयर टू शेयर इमोशंस। एंड बीइंग देयर का एक और तरीका है, गिफ्ट देना। सर मार्केट तो बंद है, बंद रहने दीजिए, हाथ से बनाइए गिफ्ट। उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मार्केट में फ्रोजन थॉट्स मिलते हैं, रेडीमेड इमोशन छपे हुए हैं जिनको आप ग्रीटिंग कार्ड्स कहते हैं। पहले से ही पता नहीं किसी सज्जन ने सोच के छाप दिया है, बस आप साइन करके दे दीजिए। उसमें ज्यादा भावनाएं होंगी कि अपने हाथ से ग्रीटिंग कार्ड लिखने में होंगी। एक ही घर में व्हाट्सएप कीजिए एक दूसरे को, एंड राइट अ लव लेटर ऑन व्हाट्सएप। वो तो कर ही सकते हैं। और रोज शाम को एक मुकर्रर समय व्हाट्सएप पे वो मैसेज चला जाना चाहिए, सो दैट एक एंजाइटी रहे, दिन भर में एक खुशी रहे कि शाम को मैसेज पढ़ूंगा। पांचवा, रेस्पेक्ट। लव का दूसरा नाम ही रेस्पेक्ट है। रेस्पेक्ट आपके हर व्यवहार में। जितनी चिंता वो आपके माता पिता की कर रही हैं, उतनी ही चिंता आप उनके माता पिता की कीजिए। बार बार फोन लगा के पूछिए, कितना महान रेस्पेक्ट का तरीका है। इन्वॉल्व कीजिए, जो भी निर्णय ले रहे हैं, टेक हर और हिज एडवाइस। स्पाउस की एडवाइस लीजिए, उससे पूछिए, ही और शी विल फील इन्वॉल्व एंड इंपॉर्टेंट। और आखिरी, सुनिए। सातवां, लिसन। ये सबसे बड़ा टूल है, शांति से सुनिए। तो सुनने की परिभाषा क्या है? कंपैशनेट, नॉन जजमेंटल, पेशेंट लिसनिंग। हर शब्द इंपॉर्टेंट है। कंपैशनेट, ऐसे सुनिए जैसे सामने आपकी बेटी बैठी हो 6 साल की और वो अपना दुख बता रही हो। कैसे सुनेंगे आप? या आपका बेटा बैठा हो, इन ईदर जेंडर केस। कंपैशनेट, फुल ऑफ लव एंड कंपैशन। दूसरा, नॉन जजमेंटल, नहीं तुम तो ऐसी ही हो, डोंट जज, लेट पर्सन शेयर इट। एंड लास्ट इज पेशेंट। जब तक बोलना है बोलने दीजिए। अपने आप सामने वाला व्यक्ति हल्का होगा, रिलेशन सुधर जाएंगे। तो हम फिर से समराइज कर दें। पहला, स्पीक गुड। दूसरा, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सर्व। तीसरा, लव एंड ट्रस्ट। चौथा, बी देयर, गिफ्ट हो सके तो दीजिए, सबसे बड़ा गिफ्ट तो आप स्वयं है। पांचवा, रेस्पेक्ट। छठा, इन्वॉल्व कीजिए हर चीज में, एक्नॉलेजमेंट एंड इन्वॉल्व। एंड सातवां, लिसन, सुनिए, श्रवण कीजिए। इसी को भारतीय शास्त्रों में सप्तपदी कहते हैं। हमने इंग्लिश में जरूर बता दिया, पर यही 7 वचन है जो सप्तपदी में दिए जाते हैं। क्या हमने उत्तर दिया? Thank you for sharing this knowledge with us. I believe that these 7 steps will actually translate well beyond the lockdown as well. Amen. The next question is again about interpersonal relationships between a husband and wife. They are saying things between me and my spouse were rocky before the lockdown. Now we are stuck together due to the lockdown, and I feel constantly stressed out and emotionally drained. Please suggest what would help me in this scenario. Okay. रिलेशंस पहले अच्छे थे, पर लॉकडाउन के बाद रिलेशंस उतने अच्छे नहीं बच रहे हैं। एक्चुअली सत्य और मिथ्या की जो परिभाषा शास्त्र देते हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सत्य वो है जितना पास जाएं आप उसके, जितना समय बिताएं उसके साथ, वो उतना स्टैब्लिश होता है, उसी को सत्य कहते हैं। और मिथ्या वो है कि जितना समय आप उसके साथ बिताएं, जितना पास जाएं, उतना वो लेसर होती जाती है। सो अगर ऐसा लग रहा है कि रिलेशंस आर नेगेटिवली इफेक्टेड बिकॉज
हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं, तो इसका एकमात्र मतलब है कि हम एक दूसरे के साथ अभी एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते। सो हम क्या करें? पहला काम कीजिए, और रादर उस काम को हम कहें जिसको आप 3-4 काम कीजिए। पहला, जब भी कोई बात कहे तो उस बात को सबसे अच्छे शब्दों में रखिए। प्रियम, whenever you say something, put it in very beautiful words, सबसे अच्छे शब्दों में रखिए। बोलने के बाद सोचिए, क्या ये इस बात को रखने का सबसे अच्छा तरीका था? हमने जो पहले बताया वो 7 काम तो कीजिए ही, उससे मदद मिलेगी, पर इन 7 कामों के साथ कुछ काम और जोड़ लीजिए। Whenever you say something, speak it in most possible best words, जिसको हम कहेंगे प्रियम, अच्छे से बोलिए। ठीक। दूसरा इज संयम। कई बार हम एक दूसरे के साथ दिन भर रहते हैं तो बहुत टोकते हैं एक दूसरे को, तो समय देख के टोकिए। अरे हर चीज कहने का एक समय होता है। हमारे एक परिचित थे, उनकी स्पाउस का वजन बढ़ रहा था, तो हम एक शादी के प्रोग्राम में मिल गए। वो स्पाउस अपनी थाली लगा के आई और वो गुलाब जामुन उठा के वो मुंह तक लेके ही गई थी कि इस जेंटलमैन ने कहा, ये देखो यही कारण है तुम्हारा वजन बढ़ने का, तुम्हारा खुद पे कंट्रोल नहीं है। इससे खराब समय आप चुन सकते हैं खुद के लिए ये बात रखने के लिए? अपने आप विवाद बढ़ेगा। हर बात का एक समय होता है, उस समय का आप इंतजार कीजिए, और जब वो सही समय आए तभी आप अपनी बात को रखिए। हर समय हर चीज मत बोलिए। ठीक। तीसरा, गो बैक टू मेमोरी लेन। देयर वॉज अ टाइम व्हेन थिंग्स वर वेरी ब्यूटीफुल बिटवीन बोथ ऑफ यू। उस समय की यादों को फिर से निकालिए एंड एक्सचेंज विथ ईच अदर। एल्बम हो तो एल्बम देखिए, पुरानी कोई वीडियो कैसेट हो तो वो देखिए, वो पुरानी यादों को फिर से निकालिए। आप लिखिए बैठ के, आपको उस व्यक्ति में 5 चीजें सबसे अच्छी क्या लगती है, उसको बोलिए कि वो लिखे कि उसको आप में 5 चीजें अच्छी क्या लगती है, और इन चीजों पे आपस में बैठ के डिस्कस कीजिए। ये प्रश्न एक दूसरे से पूछिए, मैं वो एक काम क्या है जो मैं करूंगा, तो यू विल फील वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड लव्ड। आस्क फ्रॉम ईच अदर दीज थिंग्स। These couple of things can help you in understanding each other more better. तो first is प्रियम, अच्छा बोलिए। Second is समयम, right time पे आप बोलिए, हर कभी मत टोकिए। तीसरा is go back to memory lane, identify beautiful thoughts and memories, share. चौथा, make to list, आपको उनमें सबसे अच्छी चीजें क्या लगती है और उनको आप में क्या लगती हैं, उस लिस्ट को शेयर करें एक दूसरे के साथ। और पांचवा, पूछिए वो एक चीज क्या है जो अगर मैं करूं तो यू विल फील लॉट ऑफ लव्ड एंड इंपॉर्टेंस। हैव आई आंसर्ड इट? Thank you. The next question is from a slightly younger audience. They're saying, I miss going to college, hanging out with my friends, which was a huge stress buster for me. What can I do post lockdown now? Okay. देखो भाई, आपने कहा कॉलेज जाता हूं तो दोस्तों के साथ बात करने से स्ट्रेस बस्टर होता है, तो इस लॉकडाउन में पता लगाओ ये स्ट्रेस आ कहां से रहा है जिसको कॉलेज में जाके बस्ट करते हो। सो आइडेंटिटी, ये सबसे सही समय है टू गो इनसाइड योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द रीजंस ऑफ माय स्ट्रेस, किससे मुझे स्ट्रेस आ रहा है। सो अगर आप इस समय का इस चीज में सदुपयोग करेंगे तो शायद आप बेहतर कर पाएंगे। क्या आपको किसी रिलेशन से स्ट्रेस आता है, या फिर स्ट्रेस इसलिए आ रहा है कि you are not happy with your own achievements of life? किस कारण से स्ट्रेस आ रहा है आपको? You try to identify that reason of stress, उसको लिखिए, एंड जब आप उसको पता लगाएंगे तो फिर उस पर आप काम करना शुरू कीजिए। The next question says, I work in the corporate sector and find myself logged on to work 24/7 because I work from home. Any suggestions to improve my productivity and enable a better relationship with my job? परफेक्ट। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप ऐसा कीजिए, भगवत गीता का एक श्लोक है, हमें बड़ा पसंद आता है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु
युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखाः। युक्त आहार, बैलेंस डाइट लीजिए। जब जरूरत से ज्यादा डाइट लेंगे तो आपका शरीर बर्बाद हो जाएगा। हमने आज तक मोटी बिल्ली नहीं देखी, हेल्दी बिल्ली देखी है, आपने भी नहीं देखी होगी। ये जानवर मोटे नहीं होते, हमने आज तक मोटी चिड़िया नहीं देखी। ये मोटापा केवल इंसानों का ही कॉपीराइट बन चुका है इस धरातल पर, क्योंकि हमारा फूड पर नियंत्रण नहीं है। सो पहला काम कीजिए, आहार नियंत्रित कीजिए। ठीक, युक्त आहार। युक्ताहार विहारस्य, विहार, रिक्रिएशन के लिए भी समय निकालिए। थोड़ा रिक्रिएशन के लिए समय निकालिए। यह मत समझिए कि सारी दुनिया आपने सर पे उठा रखी, ऐसा है नहीं भाई। यदि आप होंगे या नहीं होंगे तो भी आपकी कंपनी चलेगी। हमें याद आता है, एक महिला थी, वो एक ट्रॉली में बिठा के अपने 6-7 महीने के बच्चे को लेके मॉल में गई थी। तो कुछ खरीद रही थी, अचानक उसकी बच्ची फुल स्विंग पे रोने लगी, जोर जोर से। तो उस महिला ने तुरंत उस बच्ची को, जब वो रो रही थी जोर जोर से, उस बच्ची को देखा और फिर महिला ने कहा, जेनिफर रिलैक्स। और बच्ची रोए सो रोए। अच्छा, उसकी आवाज गूंज रही थी पूरे मॉल में। तो इसने फिर से कहा, जेनिफर कंट्रोल योरसेल्फ। बच्ची रोए सो रोए। इसने फिर से कहा, जेनिफर लोग तुम्हें देख रहे हैं। ये फिर से रोती रही। उसने कहा, जेनिफर डोंट क्रिएट सीन। बच्ची रोती रही। ये महिला कहती रही, जेनिफर रिलैक्स, कंट्रोल योरसेल्फ, डोंट क्रिएट सीन, लोग तुम्हें देख रहे हैं। और ये बच्ची रोए सो रोए। तो वहीं एक बुजुर्ग खड़े थे, उनसे देखा नहीं गया। वो उसके पास आए, इस महिला के पास, और बोला, बेटा तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा तुम इस छोटी सी बच्ची से बड़ी एल्डरली टॉक कर रही हो? ये 6-8 महीने की बच्ची क्या जाने कि इसने सीन क्रिएट करा है, या इसे रोना नहीं चाहिए, या ये शी शुड कंट्रोल हरसेल्फ। तो ये सुन के उस महिला ने बड़ी विनम्रता से कहा, सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस बच्ची से बात कर रही हूं? एक्चुअली जेनिफर मेरा नाम है, और ये रो रही है ना तो मुझे बहुत चिढ़ हो रही है, तो मैं खुद को कह रही हूं, जेनिफर रिलैक्स, जेनिफर कंट्रोल योरसेल्फ, जेनिफर नेवर क्रिएट सीन हियर, जेनिफर रिलैक्स, जेनिफर रिलैक्स। तुम्हारे बिना भी दुनिया चल जाएगी, जेनिफर रिलैक्स। अगर जम्मू कश्मीर जैसा राज्य 1 साल बिना मुख्यमंत्री के चल सकता है तो आपकी कंपनी भी चल सकती है श्रीमान। आपने सर पे नहीं उठा रखा, सब चीजें चल जाएंगी। हमारे पास एक मैसेज आया था हमारे मित्र का पुराना, उसमें लिखा था, गांधी जी की हत्या कर दी गई, नेहरू जी भी नहीं रहे, इंदिरा गांधी जी भी नहीं रही, शास्त्री जी भी हृदयघात से चल बसे, राजीव जी भी नहीं रहे, वाजपेयी जी भी अब नहीं रहे। आजकल मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती, जाने देश का क्या होगा। सच में रिलैक्स, जेनिफर रिलैक्स। सर पे लेके घूमने की जरूरत नहीं है। छिपकली छत पे चिपकी रहती है, उसे लगता है मैंने छत उठा रखी है, ऐसा नहीं है। हम में से कोई भी ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है जो हमसे पहले किसी ने ना किया हो, या हमारे बाद कोई नहीं करेगा। जेनिफर रिलैक्स। रिक्रिएशन के लिए समय निकालिए, हॉबीज के लिए समय निकालिए, कुछ पेंटिंग कीजिए, अपनी पसंद का काम कीजिए। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य, थोड़ा प्राणायाम कीजिए, कसरत कीजिए। प्राणायाम का फॉर्मूला हम बता देते हैं, 12-24-12। ब्रीद इन 12 सेकेंड। मोबाइल में वो लीजिए, स्टॉप क्लॉक खोलिए मोबाइल की, हम आपको दिखा दे रहे हैं। मोबाइल की स्टॉप क्लॉक खोलिए और उसमें ब्रीद इन कीजिए। जब आप ब्रीद इन कर लें उसके बाद फिर होल्ड कीजिए 24 सेकंड तक। जब आप 24 सेकंड तक होल्ड कर लें तो फिर ब्रीद आउट कीजिए 12 सेकंड तक। और अगर ये कर लें तो यही लिख के हमें बता दीजिएगा कि हम कर चुके हैं। ये देखिए ऐसा दिखेगा, दिख रहा है, 3 लैप बना दीजिए। ठीक, तो 12-24-12, इससे आपका शरीर ठीक होगा। कर्मशु, युक्त चेष्टस्य कर्मशु, नौकरी में भी टाइम दीजिए। युक्त सपनावबोधस्य, समय पे सो जाइए। इनफ नींद लीजिए, WHO कह ही रहा है। युक्त सपनावबोधस्य, समय पे उठ जाइए। सूर्योदय देखिए, उस समय मेडिटेशन कीजिए, सूर्य नमस्कार कर लीजिए। योगो भवति दुःखाः, तो कोई दुख नहीं होने वाला।
Thank you. I think these are wonderful life lessons that I feel like most of our audience and whoever else is tuning into this program later on can carry forward post lockdown, especially just these few tips that you mentioned can be life changing in managing work life balance once we are also going to office. Thank you. Thank you. The next question, you did speak a little about this already when you mentioned car and accepting the unchangeable. The next question actually talks about it. Today morning, I read the news of a 6-month-old baby testing positive in Chandigarh for COVID-19 and 52 healthcare workers being quarantined. I am constantly stressed out for the health and safety of my 1-year-old. How do I manage this? दो बात है. पहला तो आपको उससे चिंता हुई जो आपने पढ़ा और उस चिंता को आप लेके आई अपने घर में. तो यहां दो काम करने हैं. पहले तो पढ़ने से पहले नजरिया सुधारने की जरूरत है. ठीक, क्या तात्पर्य है नजरिया सुधारने का? आप जब भी पढ़ते हैं तो हमें एक सफेद बोर्ड पे एक काला डॉट दिखता है और उस काले डॉट पे हमारी नजर ज्यादा जाती है. आप केवल ये पढ़िए ठीक कितने लोग हुए हैं. वो आंकड़ा बड़ा है, आप वो पढ़ रहे हैं जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं. आप जब भी आम का पेड़ देखते हैं तो आप उसे आम का पेड़ क्यों कहते हैं? आम तो बहुत कम होते हैं, पत्ते ज्यादा होते हैं, आपको तो पत्ते का पेड़ कहना चाहिए उसे, पर आप उसे आम का पेड़ कहते हैं. क्यों? क्योंकि आप किसी भी चीज को उसकी क्वालिटी से डिफाइन करते हैं, ना कि उसकी नेगेटिविटी से. इसीलिए भगवान राम ने जब रावण का संहार किया तो जाके उससे माफी मांगी और हाथ जोड़ के उन्होंने रावण को कहा, रावण मैं तुम भी मुझे बड़े प्रिय हो, मुझे दुख है कि मुझे तुम्हें मारना पड़ा, ये मेरा कर्तव्य था. तुम्हारे 10 में से 9 सिर भ्रष्ट थे पर एक सिर ज्ञानी का था और मैं तुम्हें याद रखूंगा एक ज्ञानी रावण के रूप में. और मुझे दुख है कि तुम्हारे 9 के साथ वो सिर भी मुझे मारना पड़ा. लोगों को डिफाइन कीजिए, परिस्थितियों को डिफाइन कीजिए पॉजिटिविटी में. और यदि आप ऐसा किसी समय का इंतजार कर रही हैं कि चारों तरफ की परिस्थिति बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगी, तो मैडम जिंदगी में वो समय कभी नहीं आने वाला. कुछ ना कुछ कभी ना कहीं ना कभी किसी न किसी रूप में होता ही रहता है. ये 7.5 अरब की दुनिया है, कुछ ना कुछ होता रहता है. आज हिंदुस्तान में जितने लोग इस बीमारी से नहीं रहे, हम पढ़ते थे, उस आज तक जितने लोग इस बीमारी से नहीं रहे उतने लोग तो रोज रोड एक्सीडेंट में चले जाते थे. आज इतनी सारी जीवन बच रहे हैं, रोड एक्सीडेंट नहीं हो रहा. थाने कह रहे हैं क्राइम एकदम से कम हो गया है, सड़कों पे यातायात नहीं है. मेडिकल हॉस्पिटल्स कह रहे हैं लोग बीमार कम पड़ रहे हैं. आप कैसे याद रखना चाहेंगे इस समय को? यह आपकी चॉइस है. आप कैसे देखना चाहेंगे इस समय को? तो पहली बात, इस समय को सही रूप से देखिए, सार्थक रूप से देखिए, उसको उसकी पॉजिटिविटी में याद रखिए, क्योंकि वैसे भी आप इसके लिए कुछ कर नहीं सकते. और दूसरा, मेरे बच्चे को ना हो जाए कहीं, पहली बात तो याद रखिए, थॉट्स लीड्स टू फीलिंग्स, फीलिंग लीड्स टू वर्ड्स, वर्ड्स लीड्स टू एक्शंस. और दूसरी भी याद रखिए, बच्चा सीसीटीवी कैमरा है, आपके इमोशंस वो मिरर करेगा. इट इज कॉल्ड मिरर इमोशंस, मिरर न्यूरॉन्स. मां जो सोचती है बच्चा महसूस करने लगता है. कैसे महसूस करने लगता है? हमें याद आता है एक बार हम पोर्ट ब्लेयर जा रहे थे, कहीं पढ़ाने जा रहे थे. तो पोर्ट ब्लेयर जैसे आप भारत की मेनलैंड छोड़ते हैं और समुद्र के ऊपर उड़ते हैं तो वहां हवाएं तेज चलती हैं. तो इट वॉज अ बम्पी राइड. तो हम थोड़े से चिंतित हो रहे थे. तो हमारे पास में एक बुजुर्ग बैठे थे. अच्छा, बुजुर्ग लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, अनुभव होता है उनके पास. तो कहते हैं नहीं, डोंट वरी, चिंता की कोई बात नहीं है. तो हमने बोला आप पायलट हैं क्या? तो बोलते हैं मैं पायलट तो नहीं हूं, पर जरा इन क्रू मेंबर्स का चेहरा देखो, देखो आप एक खाना भी सर्व कर रही हैं, मुस्कुरा के बात भी कर रही हैं, कॉल अटेंड भी कर रही हैं. तो उन्होंने बोला कि देखो मेरा अनुभव यह बताता है कि जब भी परेशानी आए विमान में, क्रू मेंबर का चेहरा देखो,
क्योंकि अगर वो मुस्कुरा रही है मतलब ये रोजमर्रा की बात है, चिंता की कोई बात नहीं। पर अगर वो घबरा रही हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। ठीक। माता पिता बच्चों के क्रू मेंबर होते हैं। आपके चेहरे की शिकन उसके मानस पे गहरा असर छोड़ेगी। और याद रखिए, शब्द शरीर है, उसके पीछे की ऊर्जा आत्मा है। आप अगर ना भी बोले और बार बार ऐसा सोच रही हैं तो वो बच्चे तक पहुंचेगा। तो उसको एनर्जी के रूप में भी अनहेल्दी डाइट मत दीजिए। उसको खाने के साथ फियर मत खिलाइए, इसका दूरगामी असर होगा। तो क्या करें? दृष्टि बदलिए तो सृष्टि बदलेगी आपकी। बाहर जो हो रहा है, परमात्मा हमें ब्लेस करेगा। इंसान 10 लाख साल से इस धरती पे हैं। ऐसी कितनी बीमारियां आके चली गई। आज हमारे पास टूल्स है इसलिए हम पढ़ लेते हैं। इससे 10-10 गुना बड़ी खतरनाक बीमारियां हुई और आके चली गई। आज भी मानवता जिंदा है और जिंदा रहेगी। हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। एक बीमारी हमें यूं खत्म नहीं कर सकती। तो रिलैक्स जेनिफर, रिलैक्स। Yeah, this is a beautiful lesson for all parents in general, and we should keep the mantra in mind. Relax, Jennifer, relax. We have a couple of questions from families of healthcare workers. I'll just sum them up together. One person says, my wife is a healthcare worker. How can I make our home a stress-free zone for her? And the next question says, my daughter-in-law is a medical worker and has a newborn baby. How do I ensure that our home is a safe environment for the baby? I'm constantly worried about her working in the hospital. Very significant questions. My salutation for doctors, municipal workers, police department, central police forces, and all the people, media people who in any manner are contributing in everybody's well-being. आपकी चिंता जायज है। थोड़ा सा इसको वैसे समझें। उज्जैन एक शहर है मध्य प्रदेश में, जानती हो मंदिरा? इस शहर में भगवान महाकाल का मंदिर है। ठीक। तो चलिए हमें एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। हम उन सभी लोगों से बात कर रहे हैं जिनके परिवार के कोई सदस्य आज मानवता की सेवा के लिए सड़कों पर उतरे हैं, हॉस्पिटल्स में। एक मालिक था, उसका एक गार्डन था। उस गार्डन में उसने 2 माली छोड़ रखे थे। केयर टेकर्स 2 थे। केयर टेकर ए जो था वो क्या करता था? बिल्कुल मक्कारी करता था, क्योंकि मालिक तो कभी कभी आता था, कुछ काम नहीं करता था, गार्डन की देखभाल ही नहीं करता था। पर जैसे ही मालिक आते थे, मालिक के पैरों में लोट लगा जाता था, मालिक की खूब तारीफ करता था, उनकी चापलूसी करता था, और उस समय इतना काम दिखाता था मानो सारा काम यही कर रहा है। यह है माली ए। कुछ काम नहीं करेगा पीछे से, बस जैसे ही मालिक सामने पड़ जाए तो लोट लगा लगा के उनको उनका स्तुति करता था। माली बी जो था वो पूरे समय मुस्तैदी से काम करता था, बहुत ढंग से गार्डन की देखभाल करता था। इतना काम करता था कि मालिक आते थे तो उन्हें मालिक से मिलने की भी फुर्सत नहीं होती थी, क्योंकि गार्डन की देखभाल की जिम्मेदारी थी उसकी, अपनी जिम्मेदारी निभाता था। अंतर मन पे, अंतरात्मा पे हाथ रख के बताइए, यदि आप वो मालिक होते तो आप कौन से माली को ज्यादा पसंद करते? एक ए जो हमेशा बस आपकी तारीफें करता रहता है, या बी जो आपके गार्डन को सुरक्षित रखता है? स्वाभाविक रूप से बी, क्योंकि अगर आप ए करते तो गार्डन ज्यादा दिन बचेगा नहीं आपका, तो आप बी को ही पसंद करते हैं। तो दोस्तों, जब हम इंसान होके, इतनी छोटी सी अकल वाले हम इंसान, इतनी अकल हम में है, तो जो इस सारी दुनिया का मालिक है भगवान महाकाल, क्या वो नहीं समझता कि एक बंदा तो मेरे मंदिर में आके लोट लगाता है और दूसरा बंदा सड़कों पे उतरा हुआ है उस मानवता की सेवा करने के लिए जिसको मैंने पैदा किया है? तो परमात्मा का ब्लेसिंग्स किसको मिलेगी? निश्चित तौर पे उसको मिलेगी जो मानवता की सेवा कर रहा है। और दोस्तों, जो मानवता की सेवा करता है, परमात्मा उसे खुद अपनी गोदी में बिठाता है। बाइबल में एक सुंदर कहानी आती है, आप सभी लोगों को डेडिकेटेड। 2 दोस्त जेरूशलेम गए,
वहां जीसस का व्याख्यान हो रहा था, सब वो वहां देखने जाने वाले थे। रास्ते में गांव पड़ा, गांव में प्लेग फैला हुआ था। तो एक दोस्त ने बोला यार मैं आगे नहीं जा सकता, लोगों को तो बहुत मदद की जरूरत है। तो वहीं रुक के उन लोगों की सेवा करना चालू कर दिया। एक महामारी फैली हुई थी। दूसरा दोस्त जीसस को सुनने चला गया जेरूशलेम, पर जैसे दूसरा दोस्त वहां पहुंचा जेरूशलेम, उसने देखा जीसस बैठे एक पेड़ के नीचे और ह्यूज भीड़ लगी है, बहुत भीड़ लगी है। तो भीड़ में निकल के वो जीसस तक पहुंचना ही संभव नहीं था, तो एक पेड़ पे चढ़ के बैठ गया। वो जब पेड़ पे चढ़ के बैठा तो देख के दंग रह गया कि जीसस ने अपने बिल्कुल पास में उसके उस दूसरे दोस्त को बिठा रखा है। तो उसे बहुत बुरा लगा ये देख के कि कितना झूठा इंसान है ये। मुझे बोला था मैं सेवा करूंगा और चुपचाप शॉर्टकट से आके जीसस के पास पहुंच गया। और उसे और चिढ़ हो गई और वो उतर के पेड़ से वापस लौट गया। लौटते समय फिर से वही गांव आया। उस गांव में वो दोस्त फिर से उसे सेवा करता हुआ मिला। उसने बोला तुम अजीब आदमी हो, दौड़ के वापस भी आ गए। उस दोस्त ने बोला मैं तो गया ही नहीं। तो जीसस यही कहना चाहते हैं, जो मेरी सेवा करेगा उसके परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं तेरा योग और शेम मैं वहन करूंगा, तू निश्चिंत होकर काम कर। जो तेरे पास है उसकी सुरक्षा मेरी है, और जो तेरे पास नहीं है वो भी मैं लाके तुझे दूंगा। योग शेम वहम में हम, तो आप निश्चिंत रहिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे मैं उस परमात्मा की सेवा करता हूं जिसको मूर्ख लोग मनुष्य कहते हैं। तो आपके घर के लोग परमात्मा की सेवा में लगे हुए हैं। आप सबको हम सबका नमन। बहुत महान आप लोग, आपके सेक्रीफाइस बहुत महान है। और आप निश्चित रहिए, तुम स्वयं देखना ये मेहनत रंग लाएगी, हर किरण तुम्हारी सूरज बन के आएगी। Thank you so much for sharing this beautiful thought with us. This will definitely help allay a lot of fears of families who have healthcare workers or other corona warriors in the family. And once again, we are expressing our gratefulness to these corona warriors. Thank you. The next question relates to an educator. They're saying, I'm an educator and I wanted to know your thoughts on what are some best practices schools can explore and implement during the lockdown and beyond that. स्कूल्स क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन? आई गेस दिस इज द टाइम जब बच्चे हैव गॉट एक्सपीरियंस जो उन्हें कभी नहीं रहा उनके जीवन में, और परमात्मा करे अब उनको अपने जीवन में ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस आए भी ना। देखिए, शिक्षा और विद्या में अंतर है। शिक्षा आंसर्स देती है, विद्या क्वेश्चंस खड़े करती है। शिक्षक सॉल्यूशन देता है, गुरु प्रश्न खड़े कर देता है। इसलिए विद्या की परिभाषा है सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो मुक्त करे। एजुकेशन वर्ड का लिटरल मीनिंग इज टू ड्रॉ आउट। डालना नहीं है, निकालना। व्यक्ति के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ है उसको निकालना विद्या है। तो ये समय है। अभी हम होते तो शायद हम कहते कि अभी डालना रोक दें। क्या हम निकालने पे सोच सकते हैं? बच्चों को बोलिए उनके थॉट्स लिख के आपको मेल करें या व्हाट्सएप करें। बच्चों को बोलिए इस समय वो जो सोच रहे हैं उस पर ड्रॉइंग्स बनाएं। बच्चों को बोलिए इस समय जो सोच रहे हैं उस पर रोल प्लेस बनाएं, उस पर कविताएं लिखें। लेट्स लिसन फ्रॉम देम। इट विल वन साइड उनको बेहतर फील कराएगा, ऑन अनदर साइड आप सुन पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि बच्चे इस दुनिया को, इस समय को किस तरह से देखते हैं। सो माय सजेशन विल बी स्टॉप पुटिंग इन फॉर सम टाइम। बहुत कर लिया और हम फिर कह रहे हैं कुछ नहीं हो जाने वाला। इसीलिए आप भी रिलैक्स रहिए, उन्हें भी रिलैक्स रहने दीजिए, ठीक? और लेट्स लिसन फ्रॉम देम। क्या हम रिवर्स मेंटरिंग का सोच सकते हैं? उनको पढ़ाने की जगह क्या उनसे पढ़ने पे विचार कर सकते हैं? उन्हें टॉपिक्स दीजिए और उन्हें बोलिए कि आप अपनी मदर का रोल प्ले करके हमें वीडियो भेजिए। देखिए वो मदर का रोल प्ले में क्या करता है। क्या वो गुस्सा हो रहा है? क्या वो बहुत प्यार से बात कर रहा है?
एंड देन मदर से बात कीजिए कि उसने आपका रोल प्ले ऐसा किया है, व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट, इट इज गोना बी अ गुड इंटरेक्शन. सो इसीलिए प्रयास करें कि इस समय हम इस तरह की चीजों पे ध्यान दें. देखिए, जो एक्टिविटी है जो हम स्कूल्स में कराते हैं और इनएक्टिविटी है, एक्टिविटी इज पुटिंग समथिंग इन देम, और इनएक्टिविटी मतलब टीचर्स रुक जाएं और गेटिंग आउट ऑफ फ्रॉम देम. इसका बैलेंस करना उपयोगी है. पूरी दुनिया ही इसी के बैलेंस पे चलती है. इसको कहते हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति. एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एटम के आसपास कब घूमता है? जब सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होता है. अगर एक भी फोर्स ज्यादा हो गया, अगर बाहर की तरफ का फोर्स ज्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन एटम ऑर्बिट छोड़ देगा और रिएक्शंस हो जाएंगी, एटॉमिक रिएक्शन, पूरी यूनिवर्स कोलैप्स कर जाएगी. और अगर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में घुस गया तो ब्लास्ट हो जाएगा और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से सब बर्बाद हो जाएगा. पर जब से सृष्टि बनी है, हर एटम ने अपनी नियम को पालन किया है. बस एकमात्र स्पीशीज इंसान है जिसने अपने नियम का पालन नहीं किया. प्रवृत्ति हमने निवृत्ति से बहुत आगे कर दी. वी बिकम टू मच इन एक्शन. इसीलिए शास्त्र कहते हैं जब भी प्रवृत्ति बहुत होती है और निवृत्ति पिछड़ जाती है, जब भी धर्म पिछड़ जाता है और अर्थ आगे आ जाता है, जब भी फील्ड आगे आ जाती है और फॉरेस्ट पिछड़ जाता है, तो बैलेंस जरूरी करना होता है. तो बैलेंस करने के लिए दो चीजें आती हैं. या तो पुरुष आता है तो उसको हम अवतार बोलते हैं. कृष्ण आ जाएंगे, मोहम्मद आ जाएंगे, पैगंबर आ जाएंगे, जीसस आ जाएंगे, नानक आएंगे. या तो पुरुष आएगा, नहीं तो प्रकृति आएगी. प्रकृति आती है इसी तरह से. तो प्रकृति हैज कम टू बैलेंस इटसेल्फ. सो हमारे लिए लेसन ये है, प्रवृत्ति को रोक के थोड़ा निवृत्ति के साथ बैलेंस करें और बच्चों को भी बताने की जगह उनसे सुनना शुरू करें. Thank you so much. We have crossed our time slot of 5. Yes. If So you we should. have a few more minutes, then maybe we can take a few questions. I guess we should conclude. Okay. I have another appointment. Yes. Okay. But once again, I would like to thank you so much for sharing a few drops of your vast ocean of knowledge. Thank you once again. This has been a beautiful conversation, and I'm sure our audience will go back with a lot of positive tips, not just to deal with the lockdown, but to deal with life in general. And I would request you for your concluding remarks, please. So as a conclusion, I would like to conclude whatever I said. Whole world is here. सारा दुनिया यही है. हैप्पीनेस किसी ऑब्जेक्ट में नहीं होती बाहर. अगर हैप्पीनेस बाहर के ऑब्जेक्ट में होती तो वो ऑब्जेक्ट आपको हमेशा खुशी देता. आज वो देता है, कल वो खुशी नहीं देता. वही व्यक्ति जो कल खुशी देता था आज दुख देता है. और अगर हैप्पीनेस उस ऑब्जेक्ट में होती तो वो ऑब्जेक्ट सभी को खुशी देता. पर ऐसा नहीं होता. किसी को उस ऑब्जेक्ट से खुशी मिलती है, किसी को नहीं मिलती. और तीसरा, हैप्पीनेस इज माई ट्रू नेचर. इसलिए जब मैं अपसेट होता हूं मुझे अच्छा नहीं लगता. सो हैप्पीनेस हियर है, यहाँ है, हमारे थॉट में है. इसी थॉट से हमारी फीलिंग्स, वर्ड, एक्शंस और हैबिट्स बनती हैं. हैबिट्स हमारा कैरेक्टर बनाती हैं. तो थॉट्स कैसे बैलेंस करें? तो एक, आप देखिए जो भी थॉट आ रहे हैं, कैन आई चेंज इट और कैन आई नॉट चेंज इट. जो चेंज कर सकते हैं, चेंज द चेंजेबल. एक्सेप्ट थिंग्स आर विच आर नॉट चेंजेबल एंड रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम व्हाटएवर इज नॉट एक्सेप्टेबल. रिमूव कैसे करें? तो उसको देखने का तरीका बदल लीजिए. उसको नए तरीके से देखिए, नई तरीके से उसको परिभाषित कीजिए. रादर हम आपको एक बात और जोड़ दें, ये लेफ्ट हैंड रूल सब अपना लीजिए. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद है? फिजिक्स में हम पढ़ा करते थे. फिजिक्स केमिस्ट्री में आता था डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड. अगर मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट फोर्स ये होगा, थंब अप. तो ये जीवन में अपना लीजिए. ये क्या है? दिस सिंगल फिंगर. इट इज माई वे, माई वे. मैं चाहता था जीवन ऐसा हो. मैं चाहता था मैं करियर में ये करूं, लाइफ में ये करूं, दुनिया घूमूं, ये करूं, वो करूं, फला फला. ये मेरे सपने थे, माई वे. पर आज मैं जीवन देखता हूं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था. तो फिर ये 3 लाइन क्या है? दिस इज हाईवे, HIGH. मेरी मम्मी सोचती थी मैं तीर मारूंगा, मेरे दोस्त सोचते थे मैं ये करूंगा, समाज सोचता था मैं ये करूंगा. पर आज मैं देखता हूं तो ना तो ये हुआ ना यही हुआ है. तो आज मेरे जीवन में ना तो माईवे हुआ ना हाईवे हुआ. तो फिर क्या हो रहा है? रिजल्टेंट फोर्स दाएवे. तो जब जीवन में ना माईवे हो ना हाईवे हो
तो बिल्कुल चादर ओढ़ के आराम से सो जाइए, क्योंकि जीवन में दायवे हो रहा है और दायवे हमेशा सही होता है। हम गलत निर्णय ले सकते हैं, परमात्मा गलत नहीं हो सकता। तो जो चीज कंट्रोल के बाहर है वो दायवे है। धन्यवाद परमात्मा को दीजिए और आगे बढ़िए। ठीक, 4 काम कीजिए मन को शांत रखने के लिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, के व्यक्ति के टच में रहिए जो पॉजिटिविटी दे। धम्मम शरणम गच्छामि, अच्छी किताब पढ़िए। संगम शरणम गच्छामि, अच्छे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जो अच्छी बातें बताएं। टीवी पे अच्छा देखिए, अच्छी चीजें सुनिए, तो अपने आप एक्सपोजर लिमिटेड हो जाएगा। अप दीपो भव, मेडिटेशन कीजिए। ब्रीद इन कीजिए अच्छी एनर्जी, ब्रीद आउट कीजिए खराब एनर्जी शुरू में, फिर ब्रीद इन अच्छी कीजिए, फिर ब्रीद आउट फिर से खराब एनर्जी कर लीजिए। ठीक, ये सब कर लीजिए। रिश्तों को सुधारने के लिए स्पीक गुड, शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, लव एंड ट्रस्ट, टच, बी देयर, प्रोवाइड गिफ्ट, रेस्पेक्ट, इन्वॉल्व कीजिए सबको और सबकी सुनिए। करियर को सुधारने के लिए 5 पांडव के लिए यही सबसे अच्छा समय है। पायस ऑब्जेक्टिव, प्लान एंड प्रोजेक्शन, पावर टू एग्जीक्यूट, देन प्रिसीजन एंड देन पैशन। इसके बाद यदि बच्चे आपके आसपास हैं उनके साथ यादें बनाइए, कुछ क्राफ्टिंग कीजिए, उनकी सुनिए, वो हकलाने से बचेंगे। ड्रीम जर्नल बनाइए और सीसीटीवी कैमरे हैं आप तो रोल मॉडल बनिए, अच्छा काम कीजिए ताकि देख के उनको खुशी हो। रिश्तों को सुधारने के लिए प्रियम बोलिए, हितम बोलिए, समयम पे बोलिए और श्रवणम करना चालू कीजिए। ये सारे काम कीजिए और प्राणायाम करिए। प्राणायाम में क्या कीजिए, 12-24-12 मोबाइल में वो ऐप में जाइए और उसमें ये सब कीजिए। गहरा सांस लीजिए और ये सब करेंगे तो बेहतर होगा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मशु युक्त सपनावबोधस्य योग भक्ति दुःखा। ये जो पहले बात हमने की थी थॉट्स की, इसी को कर्म योग कहा जाता है, निष्काम कर्म योग। बाद में जो हमने मेडिटेशन की बात की, ये सब उपासना योग कहा जाता है। उसके बाद जो हमने बात की प्रकृति, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति का जो बैलेंस है, इसी को ज्ञान योग कहा जाता है। वो जो हमने 7 बातें बताई थी वो सप्तपदी है। तो हमने जितनी भी बातें बोली उसमें से एक बात भी हमारी नहीं है। ये सारी बातें हमारे शास्त्रों में हैं और अगर इसमें से कुछ हमने अच्छा नहीं बोला हो तो वो हमारी खुद की बात है, बाकी सब शास्त्रों से ली गई है। समय है, इसका उपयोग कीजिए। सो मंदिरा, थैंक यू वेरी मच, यू वर अ वंडरफुल होस्ट। यू रियली, आप सारथी की तरह आपने बिल्कुल सही सही प्रश्न चुने एंड आप उन सभी लोगों की आवाज बनी जो हमें नहीं देख पा रहे हैं और जिनको हम नहीं देख पा रहे हैं। You were a wonderful host and at such a crucial time. आपका सहयोग बहुत उपयोगी है। I would like to thank Ram Bhav Mahalgi Prabodhini also and Dreams India Foundation also. I would like to again thank Shri Vinay Sahasrabudhe sir, जिनका ये विजन आज इस रूप में आ रहा है कि उन्होंने इतने सारे लोगों को एक साथ जोड़ने पे विचार किया। हम रविंद्र साठे साहब का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया। रवि जी जो इसके सारथी बने सबको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद कि हमें इस लायक समझा कि आप सबसे बात करें। Thank you so much for taking the time for us. Thank you. Thank you. Thank you very much.